اب آپ کو بتائیں ٹینکرز مافیا انسانی جانوں سے کھیلنے لگے، ہب کینال سے پانی چوری کر کے فروخت کیا جانے کا انکشاف، بغیر فلٹر کلورین کا پانی چوری کر کے ویسٹ کے علاقوں میں فروخت ہونے کا انکشاف۔ مزید تفصیلات جانیں گے، احسن عباسی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ احسن بتائیے گا اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی 29 کلومیٹر لمبی اوپن کنال ہے جو کہ ہب ڈیم سے پانی لے کے ہب فلٹر پلانٹ تک پہنچاتی ہے۔ 100 MGD کے لیے یہ کنال بنائی گئی تھی، جس میں سے 55 سے 60 MGD پانی جو ہے وہ ہب فلٹر پلانٹ پہنچتا ہے، جہاں سے ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے اس کو ریزروائر اور دیگر بلک کی لائنوں میں سپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کی لائنوں میں یہ گھروں تک پہنچتا ہے پانی۔ یہ اوپن کنال 29 کلومیٹر کی ہے، اس کے اطراف میں کچے کے علاقے جو ہے موجود ہیں، وہاں پر یہ سنسان اور سناٹے کا فائدہ اٹھا کے ٹینکر مافیا جو ہے وہ سرگرم ہوتی ہوئی ایک دفعہ پھر نظر آ رہی ہے، اور ہب کنال سے دیکھا جا رہا ہے کہ بذریعہ پانی جو ہے وہ بھر کے جو ہے وہ ویسٹ اور مختلف علاقوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پہ یہ پانی کی کنال سے جو ہے وہ چوری سامنے آئی ہے، جس پر ٹینکر لگا کے پیٹر پمپس کی مدد سے جو ہے اس پانی کو بھرا جاتا ہے ٹینکروں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے فوری طور پہ ٹینکر لے کے موو ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹینکر مافیا کے خلاف اس سے قبل بھی جو ہے وہ کئی بار ہب کنال کے اطراف میں جو ہے وہ آپریشن کیے گئے ہیں۔ پولیس، رینجر اور واٹر کارپوریشن کے اینٹی ٹیکس سیل کی جانب سے کئی کارروائیاں بھی سامنے آئی ہیں، مقدمات بھی درج کرائے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر دیکھا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے کنال کے خلاف میں جو ہے وہ پانی چور مافیا جو ہے وہ سرگرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ٹینکر لگانا ایک دفعہ پھر شروع کر دی ہیں، اور وہاں سے پانی لیا جا رہا ہے۔ بغیر ٹریٹ ہوا ہوا پانی جو ہے وہ ٹینکرز میں بھرا جا رہا ہے، اور بھرنے کے بعد یہ تمام پانی جو ہے وہ چوری کر کے عوام کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، اور انسانی جانوں سے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ ایک پانی بھر کے فروخت کیا جانا ہے۔ اس کو فوری طور پہ روکنا ہوگا، کیونکہ کئی انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے مضر صحت پانی بیچ کے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کا جو کچا پانی ہے جو ہب کنال سے ہوتا ہوا جو ہے ہب ڈیم سے ہوتا ہوا ہب کنال کے تھرو جو ہے فلٹر پلانٹ پہنچتا ہے، اور راستے میں اس پانی کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ دیکھا جا رہا ہے کہ چوری کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا احسن عباسی۔ کراچی چیمبر نے 5 IPP سے معاہدے ختم کرنے کو خوشائند قرار دے دیا۔ سینئر نائب صدر ضیاء العارفین بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے پر امید ہیں، کہتے ہیں بجلی کے مہنگے ٹیرف سے بزنس کمیونٹی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے کاوش محمد سے۔ جی کاوش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں مہنگی بجلی کی ایک وجہ IPPs کو بھی قرار دیا جا رہا تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 IPPs ہیں ان کے ساتھ حکومت نے معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ہیں۔ دیکھیں یہ فیصلہ تو بہت اچھا ہوا، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور بجلی کے پرائسز جتنی سپیڈ سے بڑھے ہیں یہ تو ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کے لیے ایک مشکل عمل تھا، اور اوبویسلی جو ریجنل ہماری کیپیسٹی ہے ایکسپورٹ کرنے کی اور جو پرائسنگ کی ہے اس حساب سے یہ ٹیرف کا جو بڑھنا جو ہے نا، یہ جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کو بہت پرابلم ہے اور وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میری تو یہ ہے کہ جتنی IPPs ہیں یہ تو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو 5 ابھی ختم ہو رہے ہیں یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو پرائسز ہیں بجلی کے، جو سب کو یہ اسٹرائک ہو رہا ہے، آج کل انرجی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، تو یہ تو بالکل ختم ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے ایریاز کے اوپر کمپیٹ کر سکیں۔ اگر کوئی بھی چیز رعایتی ملتی ہے اور اس میں ایک بینیفٹ ہوتا ہے وہ تو ہر انڈسٹری کے لیے بہترین ہے۔ ابھی انہوں نے کہا ہے تو یہ چیز جب سامنے آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کے ریلیف مل رہا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے بھی اور اس پہ اور بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ دیکھیں کراچی چیمبر آف کامرس نے حکومتی اقدام کو خوشائند قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ انڈسٹری کو اگر سستی بجلی ملے گی تو یقیناً اس کا ملکی اکانومی پر بھی ایک مثبت امپیکٹ پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ جی 5 IPP سے معاہدے ختم کرنے کے اعلان پر سابق نائب صدر کاٹے کا بھی رد عمل آ گیا۔ ماہین سلمان کا کہنا ہے کہ فیصلے سے 114 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے کہ 27 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کی جائے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ایاز رانا سے۔ جی بالکل، اگر ہم دیکھیں حکومت نے ایک بڑا اقدام کیا جہاں 5 IPPs کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کینسل ہونے جا رہے ہیں، یا وہ ان کو جو بوجھ
आवाम के ऊपर था उसको कम करने की हुकूमत की एक पॉलिसी है। इससे कितना इम्पैक्ट आएगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ को कैसे देखती है, उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं माहीन सलमान, उनसे ही जानते हैं। मैम, हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम, जहाँ हम देख रहे थे कि IPPs एक बड़ा हमारे लिए सफ़ात हाथी बन चुका था, अब हुकूमत 5 के साथ जो है वो अपने मुआहदे कैंसिल करने जा रही है, कैसा होगा, ये खुशाइन है? बिल्कुल ये बहुत खुशाइन बात है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। अभी अगर आप ये सोचिए कि 107 IPPs में से इन्होंने 5 ख़त्म किए हैं, अभी 102 बाकी हैं, लेकिन उन 5 के ऊपर आपकी 411 अरब रुपए की सेविंग है। तो अब आप ये सोच लीजिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर हम बाकी 102 भी ख़त्म कर दें। लेकिन ये है कि एटलीस्ट चलें, शुरुआत हुई, कोई ताज़ी हवा का झोंका आया इधर। और अगर इसका ये इम्पैक्ट जब आएगा, जब इसको सेविंग्स को ये बेनिफिट में ट्रांसलेट कर देंगे, बिल्स जो हैं उनके अंदर कमी आ जाएगी। जैसे कि बिज़नेस कम्युनिटी ने डिमांड कर रखा था कि 27 रुपये पर यूनिट तक आप लेकर आ जाएँ ताकि हम इंटरनेशनली ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएँ। अगर हम उधर तक भी पहुँच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इकोनॉमी के लिए भी और लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो आई मस्ट अप्रिशिएट दिस इफ़ेक्ट, दिस इम्पैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू क्रिएट। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है माहीन सलमान साबिक, क्योंकि काटी से इनका ताल्लुक़ है और उनका भी यही कहना है कि एक ताज़ी हवा का झोंका जिसको करार दिया जा रहा है, जो हुकूमत का इनिशिएटिव है, 5 तो कर दिए गए हैं IPPs के साथ मुआहदों की जो तातुल होने जा रहा है, लेकिन मज़ीद अभी 102 IPPs बाकी हैं जिनके साथ अभी काम होना उन पर बाकी है, ताकि ये अगर मुआहदे हमारा जो बोझ इकनॉमी पे है वो कम होगा और आवाम पे और इंडस्ट्री जिस तरह से डिमांड है वो इसका इम्पैक्ट ज़रूरी है कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम लेने पड़ेंगे। जी, ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने की काविशों को खुशाइन करार दे दिया। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं कि मुआहदों के खात्मे के समरात आवाम को सस्ती बिजली की सूरत में हासिल होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IPPs के हवाले से बात की जाए तो मुल्क में तकरीबन 107 IPPs में से हुकूमत अब 5 IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म करने जा रही है और इस मुआहदे के ख़त्म होने से हुकूमत को जो है तकरीबन 411 अरब रुपये की बचत हो सकेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतीक मीर, जो कि मारूफ ताजिर रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। इनसे जानते हैं 5 IPPs के साथ हुकूमत मुआहदा ख़त्म करने जा रही है, कैसा देखते हैं ताजिर बरादरी इस चीज़ को? एक बहुत बड़ी बात है इस मुल्क में कि वो जो इसके बेनिफिशरीज इस मुल्क में थे वो इस पर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे कि बैनुल अक़वामी माहिदों को हम ख़त्म नहीं कर सकते, जिस तरह ये दीगर पावर कंपनीज़ के बारे में। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक पाक अरब गालिबन एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने एक IPP जिन्होंने सबसे पहले रज़ाकाराना तौर पर विड्रॉ किया, उसके बाद ही हुकूमत की भी हिम्मत हुई कि दीगर को। ये एक ऐसा अमल है इस मुल्क में पहली दफ़ा एक बहुत बड़ी करप्शन जिसको इस तरीके से रोका गया है, और अगर इसके बेनिफिट्स आवाम को हासिल हुए तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये जो घर घर बिजली के बिलों के हाथों लोग परेशान हैं, लोग इंशाअल्लाह ताला ये 40 से 50% ये बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, कुछ टैक्सों में कमी है। ये मुल्क यकीनन तरक्की की राह पे चल सकता है अगर हुकूमत अब इस बात में संजीदा हो कि इसका फ़ायदा ताजरों और आवाम को देना है। जी बिल्कुल, ये थे अतीक मीर, जिनका कहना है कि बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि 5 IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म करने आ रही है। इनका कहना है कि ना सिर्फ IPPs बल्कि ऐसे मुआहदे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, ऐसे मुआहदों को ख़त्म होना चाहिए। और जो IPPs के साथ जो हुकूमत मुआहदा ख़त्म करने जा रही है, यकीनन इसकी वजह से जो बिजली की कीमतों में 40 से 50% तक ना सिर्फ कमी वाक़ होगी बल्कि आवाम को भी जो है वो रिलीफ मिलेगा। जी, अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हैदराबाद शाजिया जबीन को ओहदे से फारिग कर दिया गया। शाजिया जबीन को महकमा सर्विसेज जर्नल रिपोर्ट करने का हुक्म। गोहर मसरूर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हैदराबाद तैनात। जी हाँ, अफसरान के तकर्रुर तबादले हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हैदराबाद शाजिया जबीन को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आज़ाद, क्या वजह बनी है इसकी?
जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हैदराबाद शाजिया जबीन मुनवर को ओहदे से फारग करके उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि सेक्शन अफसर महकमा खजाना गोहर मसरूर का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हैदराबाद तैनात कर दिया गया है, जिसका जो दो अलग अलग महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन पीएससी निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत जारी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हिसाबात का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में मुतादिद अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी तलब किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी देखिए, सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। आज जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में पीएससी का इजलास है और ये बड़ा भरपूर इजलास है। सिंध के कई अजला के डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनको भी तलब किया गया है। मुख्तलिफ अजला से असिस्टेंट कमिश्नर्स आए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हिसाबात का जायज़ा लिया जा रहा है 2019-20 से लेकर अब तक के मामलात हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अफसरान बता रहे हैं कि उनसे वाबस्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ है। इजलास चूँकि अब तक जारी है, इजलास के बारे में कोई ब्रीफिंग या एलामिया जारी नहीं हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान का कहना है कि कई सालों से ऑडिट नहीं हुई है। डीजी ऑडिट जो है वो इजलास में मौजूद हैं। डीजी ऑडिट का भी यही कहना है कि कई पैराज हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। उन्होंने बताया कि कोई 57 पैराज हैं जिनमें कुछ अफसरान ने तो जवाबात दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर अफसरान ने अभी तक जवाबात नहीं दिए, रिकॉर्ड भी नहीं दिया। तो बहरहाल ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुतालिक पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास जो है वो जारी है निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत। अब देखना ये है कि इजलास में क्या फ़ैसले होते हैं, क्या कार्रवाई होती है। जी सिंध की 77 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दूसरा मरहला। ज़िला साउथ यूसी 13 के चेयरमैन की नशिस्त के लिए 13 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। जो उम्मीदवार गुज़श्ता रोज़ गैर हाजिर रहे वो आज और कल स्क्रूटनी के लिए आरओ के पास आ सकते हैं। अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की 10 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जांच पड़ताल का सिलसिला जो चल रहा है, आज उसका दूसरा रोज़ है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हूँ, जहाँ पे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपने आरओ के पास आ रहे हैं। यहाँ पर जो सीट है वो जनरल वार्ड की सीट पर जो वो इंतखाब हो रहे हैं, जबकि कोरंगी में पूरे मजमूई तौर पर जो है वो 3 नशिस्तों पर हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है वो लांडी और मॉडल कॉलोनी और यूसी 7 के लिए जो है वो जनरल वार्ड की नशिस्त के लिए जो वो इंतखाबात का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। मजमूई तौर पर कराची में 10 खाली नशिस्तों पर जो वो इंतखाब हो रहे हैं, जबकि सिंध भर की अगर हम बात करें तो 77 नशिस्तों पर जो इंतखाबात का सिलसिला जो है वो 14 नवंबर को जो वो देखा जाएगा। इस वक्त कागजात नामजदगी की जमा होने के बाद दूसरा मरहला चल रहा है, वो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का चल रहा है, जिसका आज दूसरा रोज़ है और कल इसका आखिरी रोज़ होगा। मजमूई तौर पर ये देखा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम भी जो है वो 10 फॉर्म जो है वो जमा करवाए गए थे उम्मीदवारों की जानिब से। हम ये देख रहे हैं कि एक ही जमात के कम से कम भी 2 से 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि जिसको पार्टी टिकट देगी वही बंदा जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा। अभी जो है वो कागजात नामजदगी की जो जाँच पड़ताल है उसका सिलसिला चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जनरल वार्ड की नशिस्त की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर तो 7 फॉर्म जो है यहाँ पर जमा हुए थे, जिसमें से 3 की स्क्रूटनी जो है वो कल हो चुकी है, 4 की आज और कल पे जो है वो मुबनी है। जबकि इसी तरह हम बात करें डिस्ट्रिक्ट साउथ की, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ यूसी 13 चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है वो कल कुल जो है वो 14 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिसमें से 10 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुलबर्ग और लियाकताबाद की अगर हम बात करें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो इंतखाबात वहाँ पर होंगे, तो उसके लिए भी जो है वो 10 और 11 उम्मीदवारों ने जो वो कागजात नामजदगी जमा करवाया था, जिसमें से दोनों नशिस्तों पर जो है वो 10 उम्मीदवारों के स्क्रूटनी जो है वो मंजूर हो चुकी है। फाइनल लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 17 अक्टूबर को जो वो जारी की जाएगी। अब तक ये जो सिलसिला चल रहा है ये आज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो है वो यूँ ही जारी रहेगा। उम्मीदवारों को जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के दिन ही जो है वो यहाँ के जो आरओ होते हैं वो उनको वक्त दे देते हैं कि स्क्रूटनी के दिन जो है वो इतने बजे आना है, जबकि अगर कोई उम्मीदवार गैर हाजिर रहता है तो वो दूसरे दिन भी आ सकता है, जब तक इसका सिलसिला चल रहा है। अगर कोई उम्मीदवार वक्त पर नहीं आता इस दौरान तो उसकी स्क्रूटनी जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। जी
वस्ती बहिरा अरब में मौजूद डिप्रेशन मगरिब की जानिब बढ़ गया। डिप्रेशन कराची के जुनूब मगरिब में तकरीबन 1190 किलोमीटर के फासले पर मगरबी वस्ती बहिरा अरब पर मौजूद है। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। बलोचिस्तान के माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आइमा खान से। जी आइमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मगरबी वस्ती बहरे अरब पर मौजूद डिप्रेशन जो है वो गुज़िश्ता 10 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। डिप्रेशन कराची के जुनूब मगरिब में 1190 किलोमीटर से जो है वो दूर है, जबकि इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक ये डिप्रेशन जो है वो कमज़ोर होकर हवा के शदीद कम दबाव में जो है वो तब्दील हो जाएगा, जबकि जो सिस्टम है उसके मरकज़ के अतराफ में जो है वो 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा भी चल रही है। साथ ही साथ जो है वो आज शाम तक जो है वो समंदर में तुग़यानी रह सकती है। ताहम बलोचिस्तान के जो माहीगीर हैं उन्हें जो है वो खुले समंदर में जाने से जो है वो रोका जा रहा है, जबकि साथ ही साथ सिंध के माहीगीरों के हवाले से जो है वो कोई इस तरह का अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान की किसी भी साहिली पट्टी को इस डिप्रेशन से जो है वो कोई खतरा नहीं है और आज दोपहर तक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये कमज़ोर होकर हवा के शदीद कम दबाव में जो है वो तब्दील हो जाएगा। जी आइमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह से पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स के ओहदेदारान की मुलाकात। मुल्क हुकूमत सिंध निजी शोबे के ताउन से मुआशरे की बेहतरी के लिए कोशिश है। हमें दुनिया को पैगाम देना है कि सनतकार और हुकूमत एक पेज पर हैं। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत जाम इकरामुल्लाह तालिबी से पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ओहदेदारान से मुलाकात हुई है। मुलाकात सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह तालिबी के दफ्तर में हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी सनअत तिजारत मोहम्मद यासीन बलूच शर भी मौजूद थे। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो नौ मुतक़िल चेयरमैन है आमिर चौटानी भी मौजूद है। एसोसिएशन के ओहदेदारान ने सूबाई वज़ीर को गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर के दरपेश मसाइल से आगाज़ किया है और सूबाई वज़ीर ने कहा है कि एक्सपोर्टर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में अहम और मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। साथ ही कहा है कि मुकामी सनअत के फरोग के लिए सनअतकारों का बहुत अहम किरदार है। जो मसाइल हम मिलजुल कर जो इसको हल करेंगे और यकीनी तौर पर हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेंगे। जो मसाइल बताए गए हैं जिसमें पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए तमाम सारे इक़दाम भी हुकूमत उठाएगी और कहा है कि हुकूमत सिंध निजी शोबे के ताउन से माशरे की बेहतरी के लिए भी कोशिश है। जी अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। सड़क पर ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे। शहरी कहते हैं कि मंसूबा जल्द मुकम्मल न होने के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मंसूबा फौरी मुकम्मल कराने की अपील कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। बताइएगा नुमान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक के शदीद मसाइल हैं शहरियों को शाम के औकात में, सुबह के औकात में। और इस वक्त यहाँ पर जो तरक्याती मंसूबा बन रहा है वो इस वक्त भी जारी है और जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें बताइएगा, जब यूनिवर्सिटी रोड से गुजरना होता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लेकिन यूनिवर्सिटी रोड जब बहुत ख़राब थी ना, अभी इस मंसूबा शुरू करने से पहले इस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने 1.5 अरब रुपया तकरीबन लगाया और उसके 2 महीने बाद सब तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ये काम शुरू कर दिया और ये काफ़ी अरसे से काम चल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं और ट्रैफिक में रात को, सुबह के औकात और शाम के औकात में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, अच्छा मुझे बता दीजिए कि शहरियों की डिमांड क्या है इस वक्त के फौरी मुकम्मल होना चाहिए मंसूबा, क्या कह रहे हैं? देखिए, ये तो एक डिमांड नहीं है, ये तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को जब आप कोई मंसूबा स्टार्ट करें लोगों के लिए नेमल बदल दें, दूसरा मुतबादल रास्ता दें और इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है, ये एक बिजी एरिया है तो इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें, ना कि लोगों के लिए परेशाानी पैदा करें। ये जरूरी चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर होती है सड़कों के ऊपर और यूनिवर्सिटी रोड पर इस वक्त जो ट्रैफिक की शदीद रवानी जो है वो मुतासिर होती है वो सुबह के औकात में और शाम के औकात में है, जबकि इस वक्त भी मंसूबा जो है वो सुस्त रवि का शिकार है जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, भारत में कैद 7 पाकिस्तानी माहीगीर वतन वापस पहुंच गए। वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया। माहीगीरों ने दौरान कैदी भारतीय इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर मायूसी का इजहार किया।
नमरा रियासत की रिपोर्ट देखें। भारतीय जेल में कैद माहीगीर वतन वापस पहुंच गए। अनजाने में सरहद अबूर करने वाले माहीगीरों को सज़ा के बाद पाकिस्तान भेजा गया। सज़ा याफ्ता माहीगीर अपनों से मिलने के बाद खुशी से निहाल। भारत में सज़ा काटने के बाद वतन वापस पहुंचने वाले माहीगीरों को वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान भेजा गया। माहीगीरों को एडी सेंटर ने कराची में अहले खाना के हमरा नकदी रकम देकर घर रवाना किया। मैडम, हम टोटल 6.5 साल वहाँ पे कैद थे। हमें 3 साल की सज़ा दी थी, 6.5 साल हमें रखा गया। 6.5 साल बाद हमें छोड़ा गया। तो फिर बस मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान में अपने परिवार से मिला हूँ। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारे आर्मी चीफ, हमारे ईजी अब्दुल सत्तर जनाब साहब को आप मीडिया वालों को दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। सज़ा याफ्ता माहीगीरों ने दौरान कैद इंतज़ामिया के नामुनासिब रवैये पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि हम पर ज़हनी दबाव भी डाला गया और खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। अपनों से मिलने की खुशी में मगन माहीगीरों ने हुकूमत और तमाम ताउन करने वाले इदारों का रिहाई पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अली मोहम्मद के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।